the chapter 2nd polynomial class 9th exercise 2.5. Students, this exercise 2.5 is based on the algebraic identities. In class 9th you have learned so many new identities and this exercise is completely based on the identities. So you have to learn all the identities. If you learn all the identities, then you can easily apply on the questions. Now question number 1 is use suitable identities to find the following product. What you have to do? You have to find the following product. That means first you have to see the question and identify which identity is used here. Now student, compare it with this x plus a into x plus b. Here the x first term is same, so xx, and now a and b are different. So identity कौन सी लगेगी? x plus a, x plus b. And you know that x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus ab. This is the identity. We are going to use this identity to solve this part. ठीक है? Now what is a? Compare करिए. What is a? A is equals to 4. What is b? B is equals to 10. Now this x plus 4, x plus 10 can be written as x square. x square x ही रहेगा. ठीक है? Now what is a? A की वैल्यू कितनी है? 4. b क्या है? 10 और x तो x ही है. Plus a is 4 and b is 10. Now solve it. X square plus 10 plus 4 14x and 4 tens are 40. This is the product of this part. Now moving towards the second part. Second part is x plus 8 x minus 10. Now students, compare with this identity. This is x plus a and x plus b. ठीक है? Whenever this first is same and the seconds are different, then you can apply this identity. X plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. Student, make a habit of writing identity with each and every part, because जितना आप इसको लिखेंगे, रिपीट करेंगे, उतना आपको ये लर्न होगा. ठीक है? नाउ कंपेयर करिए. व्हाट इज a? a इज इक्वल्स टू, देखिए xx, a इज इक्वल्स टू 8. नाउ xx, b इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी में दोनों जगह प्लस है. दैट मीन्स a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है. बट इन माई क्वेश्चन a इज पॉजिटिव. ठीक है? नाउ b इज -10. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि b की वैल्यू क्या होगी? -10. अब मैं अप्लाई करूंगी इस प्रोडक्ट पे. देखिए x plus 8 into x minus 10 can be written as x square plus a. What is a? A is 8. What is b? b is -10. ये फॉर्मूले का प्लस और b कितना आ गया? -10. I should write like this so that there should be no confusion. What is x? x is x plus ab. a is 8 and b is -10. You should take care the sign. Sign का ध्यान रखना है, otherwise क्वेश्चन गलत हो जाएगा. Now it is x square plus minus minus and it becomes -2. ठीक है? -2x plus ये कितना आ जाएगा? -80. अब इसका साइन हम ठीक कर देते हैं. यहाँ पे ये आ जाएगा x square -2x -80. This is my answer. Hope so this part is also clear to you. Now moving towards the third part. The third part is 3x plus 4 and 3x minus 5. अगेन स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे हम इसे. यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे a और b डिफरेंट है. अगेन वी कैन यूज द आइडेंटिटी x plus a x plus b. तो आइडेंटिटी आपको मालूम है, इट इज x square plus a plus b into x plus ab. नाउ कंपेयर करिए इसके साथ. नाउ x की जगह पे क्या है? आज 3x है. ठीक है? x की जगह पे क्या लिखना है मुझे? 3x. नाउ व्हाट इज a? a इज इक्वल्स टू 4. व्हाट इज b? b इज इक्वल्स टू -5. ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया एंड वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी
You have to compare and find what is x. x is equals to 3x. यहाँ से मुझे पता चल गया x को क्या लिखना है मुझे 3x. What is a? a is equals to 4. b is equals to -5. Now मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगी. 3x plus 4, 3x minus 5 is equals to what is x square. अब देखिए x square, x की जगह पे मैं क्या लिखूं 3x का होल स्क्वायर. आज मेरे पास x क्या बन गया है 3x, 3x का होल स्क्वायर प्लस a. व्हाट इज a? a इज इक्वल्स टू 4. व्हाट इज b? b ये फॉर्मूले का प्लस और ये मेरे पास आ गया b आ गया -5. एंड व्हाट इज x? x की जगह पे मुझे क्या लिखना है 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस a. a इज 4 एंड व्हाट इज b? b इज -5. अब हम इसको ओपन कर देते हैं. नाउ दिस बिकम 3 3 is 9x square. नाउ दिस बिकम प्लस माइनस माइनस एंड इट बिकम्स -1. ठीक है. अब इंटू 3x प्लस 4 5 20 -20. अगेन इसका साइन ठीक करिए. इट बिकम्स 9x square -3x -20. दिस इज माई आंसर. अगर आपने साइन की ज़रा भी मिस्टेक की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग द साइन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट. Now the fourth part is y square plus 3/2 y square minus 3/2. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे y square x plus a x plus b, लेकिन a और b दोनों क्या है सेम है. यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं अभी तक जो आइडेंटिटी लगा रही थी वो मैं क्या लगा रही थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ पे a और b दोनों के दोनों डिफरेंट होते थे. बट आज देखिए मेरे पास क्या है 3/2 इधर है, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ y स्क्वायर है, वहाँ y स्क्वायर. इसका मतलब यहाँ पे मैं दूसरी आइडेंटिटी लगा सकती हूँ. वो कौन सी आइडेंटिटी होगी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ध्यान से देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी. अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी तो आपको पता चलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी. आपको ये पता चलना चाहिए कि मैंने ये आइडेंटिटी क्यों लगाई. कंपेयर करिए देखिए a y, यहाँ पे भी a है y स्क्वायर, दोनों के दोनों सेम है. b 3/2 b 3/2 पॉजिटिव नेगेटिव. इसका मतलब यहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी a प्लस बी ए माइनस बी. अगर मैं दूसरी लगाती यहाँ पे देखिए दूसरी क्या थी x प्लस ए एक्स प्लस बी. अब ध्यान देखिए पहला तो सेम ठीक है, लेकिन दूसरा a और b दोनों के दोनों कैसे थे अलग अलग थे. बट मेरे पास यहाँ दोनों के दोनों सेम है, तो आई कैन नॉट अप्लाई दिस मच. I cannot apply this identity. Now compare करिए यहाँ से what is your a is your y square. Compare a is equal to y square. Now what is your b is equals to 3/2. Now product हम निकाल देंगे y square plus 3/2 y square minus 3/2 is equals to what is a square. A square is equals to y square का whole square and minus b square क्या है 3/2 का होल स्क्वायर. नाउ y स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो गया माइनस 3 3 9/4. दिस इज माय प्रोडक्ट. ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये. आपको सही आइडेंटिटी चूज करनी है. विच आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी अप्लाई ऑन दिस पार्ट. दैट इज x प्लस a प्लस b a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो बी केयरफुल while solving the part. Hope so this part is clear to you. Now moving towards the fifth part. For this you should know all the identities. Learn all the identities. Now the fifth part is 3 minus 2x 3 plus 2x. Again student यहाँ पे apply कौन सी होगी देखिए a b both are same. अगर मैं x प्लस ए एक्स प्लस बी लेती तो वो फेल हो जाएगी. ठीक है, तो मैं कौन सी लूँगी a प्लस बी ए माइनस बी.
अब देखिए a क्या है मेरे पास 3, b क्या है मेरे पास 2x। यहाँ देखिए ये वाला इसको करस्पॉन्ड करता है और ये वाला इसको करस्पॉन्ड करता है ना। यहाँ पे देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। तो मैं आइडेंटिटी कौन सी लगाने वाली हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज माय आइडेंटिटी। नाउ a is equals to 3, b is equals to 2x. तो what is the product? Product is simple, a square minus b square. What is a square? 3 का square minus b square, 2x का whole square. Now 3 का square कितना हो गया 9, 2 2s are 4x square. Now this is the product. Hope so this question number 1 is clear to you. Now moving towards the question number 2. Question number 2. Question number 2 is evaluate. What I have to do? Evaluate the following product without multiplying directly. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं और हो जाता है गलत। ठीक है, यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। वहाँ पे लिखा भी क्वेश्चन में है कि डोंट यूज direct multiplication, you have to use the identity to solve it. Now 103 can be written as 100 plus 3 and 107 can be written as 100 plus 7. Hope so this is clear. हमने 103 को कैसे लिखा, 100 plus 3 it will make 103. 107 can be written as 100 plus 7. Now think which identity is going to be applied here. Now this is देखिए x plus a और here x plus b. First terms are same, so xx, and second term are different, so x plus a, x plus b. You know the identity, x square plus a plus b into x plus ab. This is my identity और ये रहा identity. Now apply करिए इस पे, तो क्या आ जाएगा 100 plus 3 and 100 plus 7 can be written as, what is your a, देखिए what is your x, x is equals to 100, what is your a is equals, compare करिए, देखिए x क्या है 100, a क्या है 3 and what is b, x क्या है 100 and b क्या है 7. तो कंपैरिजन आपको आना चाहिए कि x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3, x is equals to 100, b is equals to 7. अब मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, एक्स इज 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस व्हाट इज ए इज इक्वल्स टू 3, व्हाट इज बी इज इक्वल्स टू 7, व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 100. नाउ व्हाट इज ए क्या है 3 और बी क्या है 7, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे. नाउ अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 4 0 लग गए. नाउ 7 + 3 10, तो 10 × 100 हो गया, ठीक है, प्लस 3 7 21. इसको थोड़ा और खोल के लिखिए इस तरीके से. नाउ दिस बिकम्स 1000 + 21. अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 0, ठीक है, 1 2 0 0 1. एक बार चेक कर लें ये सही है कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चेक कर लो. मैं मुझे कहीं गलती लग रही है, मैं चेक. Now this is the answer. 11021 is the correct answer. हाँ, hope so ये पार्ट समझ आ गया होगा. Now moving towards the next part. Towards the second part is 95 × 96. Now 95 × 96 can be written as, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 100 + 5, सॉरी 100 - 5 और यहाँ क्या लिखेंगे 100 - 4. अब इस आप में से कुछ स्टूडेंट बोल सकते थे कि मैम आपने यहाँ पे 100 क्यों लिया, 95 कैन बी रिटन एज 90 + 5 और इट कैन बी रिटन एज 90 + 6. बट स्टूडेंट देखिए मैंने 100 इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. अब यहाँ पे इसको 90 पे कैलकुलेट करना अ बिट डिफिकल्ट, तो वी विल यूज द ईजियर टर्म कि 100 मल्टीप्लीकेशन करना 100 के साथ किसी भी नंबर को ईजियर होता है. दैट इज वाई वी आर टेकिंग 100 - 5 एंड 100 -
4। नाउ अब मुझे बताइए कि इस पे आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी। देखिए फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंट है। नाउ इट इज x प्लस ए एक्स प्लस बी। नाउ आइडेंटिटी इज x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नाउ कंपेयर करिए, दिस इज माई आइडेंटिटी, इसको ब्लॉक कर लेते हैं। नाउ x की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करिए। देखिए x क्या है 100, ठीक है, ये समझाने के लिए। a क्या है -5। a साइन का ध्यान रखना है, देखिए फॉर्मूले में प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी -5। नाउ व्हाट इज x तो हम निकाल चुके हैं, व्हाट इज b, b इज अगेन -4। तो मैं अप्लाई करूंगी आइडेंटिटी। नाउ दिस इज 100 - 5, 100 - 4 कैन बी रिटन एज x square। x square, what is x? x is 100 का square. Now what is a? a is -5 plus b, b is -4 into x, x is 100 plus ab, ab is -4 into -5। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4 0 आ गए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये कितना हो गया -900। ध्यान से देखिए एक बार, ये भी -5 है और ये प्लस माइनस माइनस, -5 -4 बिकम -9, -9 इंटू 100 इज इक्वल्स टू -900। नाउ माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है, तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 -900। हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए माइनस, इसको माइनस कर देते हैं। 10020 में से 900 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9120 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, होप सो दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 104 into 96। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 104 into 96। नाउ इट कैन बी रिटन एज 100 + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज 100 - 4। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये 100 में था, ये 90s में था, तो मैंने इसको लिखा 100 + 4 और इसको लिखा 100 - 4। अगर मैं इसको 100 + 4 लिखती और इसको 90 + 6 लिखती तो कोई भी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती, बिकॉज सारी टर्म्स डिफरेंट हो जाती। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 100 लिया इन टर्म्स ऑफ 100 + 4 100 - 4। नाउ विच आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी यूज हियर। सिमिलरली देखिए x + a x - b, sorry x + a x + b। now identity is x square plus a plus b into x plus ab। अब आपने इस आइडेंटिटी को कर देना है ब्लॉक। ठीक है, नाउ कंपेयर करिए, व्हाट इज योर x, x इज इक्वल्स टू 100। कंपेरिजन से मुझे क्या पता चला, x की वैल्यू क्या है 100, एंड व्हाट इज a इज इक्वल्स टू 4। नाउ व्हाट इज b, b इज इक्वल्स टू -4। ठीक है स्टूडेंट, a क्या है 4, b क्या है -4। नाउ हम प्रोडक्ट निकालते हैं, 100 + 4 इंटू 100 - 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर। व्हाट इज x स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस b। व्हाट इज a, a इज 4 एंड व्हाट इज b -4 एंड x इज अगेन 100। नाउ प्लस ab 4 इंटू -4। नाउ देखिए ये बहुत ईजी होने वाला है। वो कैसे, वो ऐसे देखिए, 4 - 4 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -4 4 ज़ा 16, तो ये कितना आ गया 1 0 0 0। ये तो पूरा 0 हो गया और -16। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गए 8 और 9 और 9, 9984 इज द आंसर। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। Moving towards question number 3, factorize the following using appropriate identities। फैक्टराइज मुझे करना है 9x² + 6xy + y²। इसको ध्यान से मुझे देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी होगी और ये फैक्टराइज होगा। सबसे पहली बात तो आपको एक माइंड में रखनी है कि जब भी मुझे किसी टर्म को फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए तो जो आपका आंसर आना चाहिए दैट शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब है आंसर मुझे किस फॉर्म में चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए, 2 फैक्टर्स चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मुझे 2 फैक्टर मिलेंगे। अगर क्यूबिक होती तो 3 मिलते। ये चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होना चाहिए सो दैट आपको ये मालूम हो कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ से शुरू करना है।
नाउ दिस 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आइडेंटिटी बना रही हूँ, y स्क्वायर कैन बी रिटन एज y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, a स्क्वायर लिख दिया और b स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा a स्क्वायर की फॉर्म में, इसको मैंने लिखा b स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने 2a और b की जगह छोड़ दी। नाउ मैंने इसको a कंसीडर किया है और इसको b कंसीडर किया है। सब्स्टिट्यूट करिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3x और b की वैल्यू क्या आएगी y। अब देखिए कि क्या ये फॉर्म हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 xy, 2 3 ज़ा 6 xy, ये बन गया ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आंसर क्या मिल गया मुझे, इसका आंसर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ की यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इसको लिखूंगी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। नाउ 3x प्लस y स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। इसको मैं 2 टाइम्स लिखूंगी क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाय 2 टाइम्स, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, इट इज 2 इंटू 2, तो वैसे ही इसका स्क्वायर है, तो मैं 2 बार लिख दूंगी तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि फैक्टराइज का क्या मतलब होता है, कि वी हैव टू गेट द 2 फैक्टर्स, तो ये 2 फैक्टर्स है। होप्स आपको ये समझ आया होगा। लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज, जिसको पहले में प्रॉब्लम हुई होगी वो नेक्स्ट को देखिएगा और क्लियर हो जाए।